Hello, welcome to the session of Juridocs. This is Shubhajit Chakravarti, who is teaching as an assistant professor since 5 years, and my experience is having a high engagement in civil procedure code, criminal procedure code, and other laws. Now, without any other, is our topic of discussion. Yes, we are going to deal with a new topic, that is Civil Procedure Code. Civil Procedure Code. Fine. Civil Procedure Code. Coming to the direct discussion of sections and order and rules, it is very wise if we start with the nature of this law. Because whenever any student or any academician is dealing with a particular subject of a law, the first thing which a person should know, that what is the nature of that law. Now, classifying the law into two types. Law is classified under these two broad heads. One is substantive law, and the other one is the adjective law. We can also say procedural law, because our current discussion is all about the procedural law. Now, what is actually substantive? Yes, it determines the rights and liabilities. It determines the rights and liabilities of parties. While this procedural law is actually the practice or enforcement of the rights and liabilities. Yes, now keeping the pen down, let us try to understand what is substantive law and what is procedural law. One can take an example of this substantive law by taking the reference of Indian Contract Act, Indian Evidence Act, by taking the concept of Indian Penal Code. These are actually those statutes which deals with the rights and liabilities, but not with the framework of machinery and enforcement. सर थोड़ा हिंदी में आ जाइए. ओके, सब्सटेंटिव लॉ बात क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ में आपका कुछ प्रोसीड्यूर के बारे में कुछ डील नहीं होता है, वो खाली राइट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर फोकस करता है. जैसे मान लो 2 मिनट के लिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है? दोनों व्यक्ति मिलके एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो दोनों के ऊपर ड्यूटी भी है, ऑब्लिगेशन भी है और राइट भी है. तो मैंने क्या बोला? ड्यूटी, ऑब्लिगेशन. अभी ऑब्लिगेशन कोई नहीं निभाया तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है? लायबिलिटीज. तो वैसे तरह आप इंडियन पिनल कोड में देखो, which deals with avoid crimes and offenses. If a particular person has committed this crime, then it is the punishment. But whether such person has committed the crime or not, how it is to be justified? For proper justification, we have to follow the procedural law, because without the help of the procedural law, the court will not be able to justify the particular issue. So this substantive law becomes effective. Substantive law के जो मतलब उसका जो प्राण है होता है ना, उसमें जिंदगी डालता है कौन? प्रोसीड्यूरल लॉ. सो procedural law actually pours oxygen to substantive law. Just studying the substantive law will not make a useful you can say will not make a useful thinking of a particular subject, because we have to also correlate that substantive law with procedural law.
जैसे मान लो 2 मिनट के लिए कुछ कुछ ऐसा लॉ भी है जिसमें सब्सटेंटिव लॉ भी है, प्रोसीड्यूरल लॉ भी है। सर कैसे? इंडियन एविडेंस एक्ट देखो, उसमें सेक्शन 115 बोला गया, आप नोट करो मेरा बात, सेक्शन 115 बोला गया। अब सीआरपीसी में भी देखो सेक्शन 125 जो मेंटेनेंस के बारे में बोलते हैं, 125 in criminal procedure code contains both substantive portion and the procedural portion. मेंटेनेंस कौन मांगता है? कौन? वाइफ, मदर, फादर, किसके केस में? हस्बैंड, नहीं तो सन, इफ ही इज हैविंग सफिशिएंट मींस। तो राइट के बारे में बोला है, अभी नहीं देता है तो लाइबिलिटी बनता है, तो लाइबिलिटी बनता है तो उसका तरीका है हाउ टू फाइल द मैटर, हाउ टू फाइल द पिटीशन, इट इज गिवन इन सेक्शन 125। सो पहले का पार्ट सब्सटेंटिव है, किसको क्या मिलेगा, कौन क्लेम कर सकता है और कैसे मिलेगा, कैसा फाइल करना है, कैसे इंटरी मेंटेनेंस मांगना है, वो सेक्शन 125 में दिया है। सो वी कैन से दैट सब्सटेंटिव लॉज आर द एग्जांपल्स ऑफ आईपीसी, राइट, आर द एग्जांपल्स ऑफ आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, Indian Contract Act. We can also say about Transfer of Property Act, TOPA 1882, पहले 1872 होगा, right? This is the examples. और भी इसके साथ ज्यादा आप जितना आप डील करोगे एग्जाम्पल तो निकालते जाएगा। वैसे प्रोसीड्यूरल का, जैसे हम लोग का आज का टॉपिक है सीपीसी, वैसे सीआरपीसी भी है, वैसे एविडेंस भी है, वैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, राइट। तो आपका ये 2 कैटेगरी होता है। तो इट हैज बीन सेड बाय वेरियस जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड रिस्पेक्टिव सुप्रीम कोर्ट्स दैट सब्सटेंटिव लॉ इज एक्चुअली टू डिफाइन, सब्सटेंटिव लॉ क्या करते हैं, इज एक्चुअली टू डिफाइन वर्ड यूज किया मैंने, क्रिएट, कन्फर। क्या कन्फर करता है? कन्फर सब्सटेंटिव लीगल राइट्स, सब्सटेंटिव लीगल राइट्स। बट यही राइट्स मान लो कोई इन्फ्रिंज करता है तो आप कैसे कोर्ट में जाओगे? विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोसीड्यूरल लॉ यू कैनॉट डू दैट। तो प्रोसीड्यूरल लॉ के लिए आपको देखना पड़ेगा, इट प्रोवाइड्स procedural object law, it provides machinery and enforcement of legal rights. तो बात आपको समझ में आया पहले। तो सीपीसी is actually in the nature of what? It is in the nature of procedural law. चलिए, अभी सीपीसी के में कुछ पोर्शन सब्सटेंटिव लॉ है, बाद में देखा जाएगा। CPC is actually categorized. CPC is actually categorized under various parts. Let us see the parts. आप contents में जाइए, सबको मैं बोल रहा हूँ CPC का आप contents देखिए। CPC का contents में आप देखो कितना contents क्या क्या है। पहला का portions जो बोल रहे हैं, let us see the Code of Civil Procedure CPC 1908, उसको देखो। पहला का जो आपका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज डीलिंग विथ प्रिलिमिनरी इज डीलिंग विथ सेक्शन 1 to 8। नेक्स्ट कमिंग पार्ट 1 इज डीलिंग विथ सूट्स इन जनरल। इट इज डीलिंग विथ सेक्शन 9 to 35B। थोड़ा चेक कर लो, गलत भी हो सकता है, 9 to 35B। नेक्स्ट आपका पार्ट 2 आ जाएगा, आपका एग्जीक्यूशन दैट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 36 to आपका 36 से 74 तक चलेगा ये, राइट। नेक्स्ट पार्ट 3 आपका इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स आएगा। पार्ट 3 इज डीलिंग विथ इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स। लिखते जाओ,
प्रोसीडिंग्स। इसका आपका सेक्शन शुरू होता है 75 से लेके आपका चलेगा 78, सेक्शन 75 टू 78। इसके बीच में मैं डाल देता हूं, चलो फ्रॉम दिस एक्सटेंट। इसके बाद आपका आएगा सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस। मेरा जो बाद में लेक्चर्स आएगा, आई विल डील विथ ऑल दिस थिंग्स सेपरेटली। सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस इज फ्रॉम 79 to 89। Next coming part 5, this is part 4, this is part 5 is about special proceedings। special proceedings कितना है? सेक्शन 91 से 95। देखो, हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को, हर लॉयर को पहला तो एक बार कंटेंट्स देखना ही है, क्योंकि उसमें एक आपको आइडिया होता है कौन सा पोर्शंस आपको इंपॉर्टेंट है। अभी आपका सिलेबस के लिए सब कुछ नहीं है, बट यू शुड नो व्हाट इज देयर इन एक्चुअली। पार्ट 6 में आपको क्या दिया है? इट इज सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। इट इज कंटेंट इन 94 to 95 शायद, मे बी, हाँ 94 to 95। तो ये आई एम सॉरी, ये पार्ट 5 93 तक था, ये 94 से 95, हाँ ठीक है। नेक्स्ट कमिंग पार्ट 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें एप्पल प्रोविजंस आपको सब कुछ मिलेगा। पार्ट 7 आपका टोटल सेक्शन है आपको 96 से लेके 112 तक सेक्शंस। नेक्स्ट आता है पार्ट 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेनिंग द चैप्टर ऑफ रेफरेंस, रिव्यू एंड रिविजन्स। टोटल सेक्शन 113 से लेके आपका टोटल प्रोविजन से 115, ठीक है। नेक्स्ट आपका पार्ट 9 आता है। पार्ट 9 इज कंटेनिंग सेक्शन 121 से लेके 131। नेक्स्ट कमिंग पार्ट 9 थोड़ा 1 मिनट मेरा गलती हो गया, 120 पार्ट, इट वाज पार्ट 8। नेक्स्ट पार्ट 9 इज अबाउट 116, ओके 116 मैंने मिस कर लिया। 116 से आपका 120। पहला का पोर्शन थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं। आई एम रबिंग दिस पोर्शंस, यू कैन ऑल्सो डू दिस से, बिकॉज आपने शायद इसको लिख लिया। कंप्लीट करने के लिए मैं इसको पहुंच रहा हूं, ओके। यस, पार्ट 9 वाज सेक्शन 116 से लेके आपको 120 तक आएगा। नेक्स्ट कमिंग पार्ट 10 आपको पूरा का पूरा रूल्स पढ़ना है, रूल्स का इंपॉर्टेंस, रूल्स पढ़ना है आपको 121 से लेके 131। और पार्ट 11 इज मिसलेनियस, तो 132 से लेके 158 तक। तो ये आपका पूरा जो सेक्शंस है, ये सेक्शंस पूरा आपका सब्सटेंटिव लॉ है, दिमाग में रखना, सब्सटेंटिव पोर्शन है, दिस इज द सब्सटेंटिव पोर्शन। बाकी नेक्स्ट जो ऑर्डर्स रूल शुरू होता है, तो फर्स्ट शेड्यूल आपका है, सेकंड शेड्यूल आपका है। तो जो आपका शेड्यूल से आपको पहले ये देखना है, टोटल ऑर्डर्स आपका 51 ऑर्डर्स है, दिमाग में रख लो। तो आपका टोटल सेक्शन कितना आता है? लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई एम सेइंग, जस्ट अ सेकेंड, यस, इस पेज को मैं हटा देता हूं और नया पेज से फिर से शुरू करता हूं। लेट्स अस सी, तो आपका टोटल सेक्शंस कितना आया सीपीसी में?
सीपीसी में आपका आया है 158 सेक्शंस, 158 सेक्शंस। कितना ऑर्डर है? ऑर्डर 51 है। टोटल ऑर्डर इज 51। ओके, और आपका कितना पार्ट है? टोटल पार्ट 11 है। दिस इज द एक्चुअल, ये सेक्शंस पोर्शंस आपको जानना है। दिस इज द सब्सटेंटिव पोर्शन। सब्सटेंटिव पोर्शन इज एक्चुअली अनअमेंडेड, चेंज नहीं होता है। ऑर्डर रूल्स इज सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट। हाई कोर्ट कर सकता है, बट हाई कोर्ट कैन नॉट चेंज। यस, मे बी देयर कैन बी अमेंडमेंट, मेरा बात वो नहीं है। आई एम ट्राइंग टू से दैट हाई कोर्ट का पावर सब्सटेंटिव पोर्शन के ऊपर उतना नहीं है। द हाई कोर्ट्स, द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स कैन नॉट मेक अमेंडमेंट्स इन रिगार्ड टू सब्सटेंटिव पोर्शन। सो एक से जो 158 तक सेक्शन है वो सब्सटेंटिव पोर्शन है। बाकी ऑर्डर 51 जितना ऑर्डर से वो है आपका ऑर्डर 51 और रूल्स भी है उसके साथ साथ। दिस ऑर्डर्स आर एक्चुअली द प्रोसीड्यूरल लॉ, प्रोसीड्यूरल पोर्शंस। So we have to study in a connectivity. We have to study in a connectivity. Now let us see about the history of the code. ये जो कोड आया था, इस कोड आने का आगे बहुत कहानी है। कहानी है क्या? पहला बात है क्या, यूनिफॉर्म सिविल लॉ नहीं था। 18 बिफोर 1859 नो यूनिफॉर्म सिविल लॉ। इसका मतलब क्या है? नो यूनिफॉर्म सिविल लॉ, इसका मतलब हर जगह जगह अलग अलग से सिविल लॉ अप्लाई होता है। इंडिया का तो मैप तो बहुत बड़ा है, तो उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंसी टाउन्स है, स्मॉल कॉजेस कोर्ट है, देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी इन फॉलोइंग दिस सिविल लॉ। सो बिफोर 1859 देयर वाज नो यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। पहला बात है। सो देयर वर डिफरेंट सिस्टम्स व्हिच आर फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दैट्स व्हाई इट वाज सब्जेक्टेड टू अमेंडमेंट। तो फिर से 1859 में सीपीसी को फिर से एनेक्टेड किया है 1859 में। ओके, बट 1859 में भी कुछ प्रॉब्लम था, उसमें फिर से यूनिफॉर्मिटी में प्रॉब्लम था। कहां का? एक सुप्रीम कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट एक नहीं था, सुप्रीम कोर्ट्स इन प्रेसिडेंसी टाउन्स, और एक कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। तो 1859 में जो एनेक्टमेंट फिर से लेके आया, चेंजेस लेके आया, उसमें भी कुछ गलती था यूनिफॉर्मिटी को लेके। देयर वर सुप्रीम कोर्ट्स इन प्रेसिडेंसी टाउन्स कौन सा था आपका? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। सो देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी एज compared with the courts of small cases. Then again it failed in the year 1908. फिर से 1908 में कोर्ट में चेंज लाने के लिए कुछ फीलिंग्स लेकर आया। लॉ कमीशंस भी बैठा था। So the law commissions has made various reports. They said that a litigant should get a fair trial with the principles of natural justice. फिर से ऐसा भी लेके आया कि every effort should be made to expeditiously deal with the issues. इसका मतलब क्या है? केस जब कोर्ट में आता है तो प्रॉपर टाइम में वो उसको डिस्पोज भी करना है, ये कोर्ट का एक ड्यूटी है। कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू एक्सपीडिशियसली ट्रायल द सूट। तो these were the changes which are failed. Next, the procedure should be simple, not complicated in nature. That would help the poor sections of the community. तो ये सब लेने के लिए 1908 में फिर से अमेंडमेंट लेके आया। 1908 में फिर से उसमें एनेक्टमेंट हुआ है सीपीसी को, और ये एनेक्टमेंट जो था, जो मेनली फोकस किया 1908 का बाद में जो एनेक्टमेंट मेनली जो चेंजेस आया था वो एक 1951 में और एक 1956 में। 1951 एंड 1956 में कुछ जो लैक्यूना, जो लैचेस कोड में था, उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये 1951 और 1956 में सिविल अमेंडमेंट्स लेके आया था। सो देयर वाज रैपिड चेंजेस। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा वाज अगेन
केम, हाँ इसके बाद 1908 में जो एनेक्टमेंट जो चेंजेस आया था, किस लिए, ये 1951 अमेंडमेंट के लिए और 1956 अमेंडमेंट के लिए। 1908 का जो एक्चुअल कोड था उस कोड में चेंजेस लाया था 1951 1956, बट उससे भी ज्यादा चेंजेस सबसे बड़ा ले आया था 1976 का अमेंडमेंट, तो उसको एकदम सुपीरियर अमेंडमेंट माना जाता है। कोर्ट में बहुत सारा जगह में अमेंडमेंट कर लिया 1976। ड्रेस जुडिकाटा को इंपॉर्टेंस दिया था, मोर इफेक्टिव किया है, पावर टू ट्रांसफर प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, तो बहुत सारा पावर से। तो इसके साथ फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ सैलरी एग्जीक्यूशन के मैटर में, ये आप धीरे धीरे आप जब एक बात आई विल come to the chapters, we'll try to know all these things, but फिलहाल आपको जानना है 1976 का जो अमेंडमेंट था उसमें सीपीसी में बहुत सारा चेंजेस ले आया है। ओके, लेट अस नॉट वेट, we'll start with the section 1 clause, and that is all about the preliminary part. Let us see. Preliminary. टोटल सेक्शन आपका कितना होगा, सेक्शन 1 to 8। एक मिनट, सेक्शन 1 to 8 सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ही पड़ेगा। ओके, एक्ट का एक्ट वेयर द एक्ट इज एप्लीकेबल, सॉरी एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड, ये एक्ट नहीं है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड कहां क्या है सर, इंडिया का मैप पूरा तो लगता है हाँ, बट एक्सेप्शन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो एप्लीकेट द कोड नंबर 1 होल इंडिया, हाँ बात तो सही है सर। नेक्स्ट, वेयर इट इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल एक जम्मू एंड कश्मीर और एक नागालैंड, स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज, ये डिफाइन नहीं किया। ट्राइबल एरियाज कुछ आसाम का एरिया में है जहां सीपीसी का एप्लीकेशन नहीं है। हाँ सर, इंडिया का मैप का अंदर है ना, बट नहीं दिया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स किया, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, उन लोग का स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया आप लोग का मर्जी, सेंट्रल बोल रहा है, बिकॉज इट्स अ सेंट्रल कोड, सीपीसी इज अ सेंट्रल कोड, पार्लियामेंट का पास हुआ है ना, पार्लियामेंट से पास हुआ है, तो सीपीसी इज अ सेंट्रल कोड। नाउ इट हैज बीन सेड इन द कोड इन सेक्शन 1 एक प्रोविसो दिया है, देखो सेक्शन 1 पढ़ो, उसमें देखो एक प्रोवाइडेड बोल के उसका सब सेक्शन का अंदर ये सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 सेक्शन 1 का क्लॉज देखो, पहले सेक्शन 1 का क्लॉज देखो, उसके नीचे देखो प्रोवाइडेड बोल के, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड by notification in the official gazette extend the provisions of this code, so it extend the provisions of this code or any of them to the whole or any part of the state of Nagaland। तो नागालैंड और जो ट्राइबल एरियाज है, इन लोग का जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन लोग को स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी ऐसा लगेगा क्या सीपीसी का लॉ रूल्स जो है we want to apply them, it is free, the central is not obstructing in this case, so provided that the state government concerned, किसका स्टेट गवर्नमेंट सर, नागालैंड का स्टेट गवर्नमेंट, और जो स्टेट का अंदर जो ट्राइबल है दैट स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न by notification in the official gazette extend the provisions of this code to the whole or any part of the state of Nagaland और such tribal areas। कितना मतलब प्लेन लैंग्वेज में बोला है। सेक्शन 1 पहले बोल रहे हैं क्या, नागालैंड में एप्लीकेबिलिटी नहीं है, अदर ट्राइबल एरियाज में एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बट उन लोग का सरकार स्टेट गवर्नमेंट मान लो एप्लीकेबल करना चाहता है, कर सकता है, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन करना पड़ेगा सर। कहां करना पड़ेगा सर, इन द ऑफिशियल गेजेट, बस खत्म। सेक्शन 1 यही है। और ये एक्ट का जो है ये 1 जनवरी 1919 में इफेक्टिव हुआ है।
देखो एनैक्टमेंट 1908 में हुआ है, 1909 में इफेक्टिव हुआ है, मतलब कामयाब काम शुरू हुआ, इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ पूरा का पूरा। तो भी उस टाइम भी 1909 से भी कुछ लॉ, देखो कानून तो निकालता है बट कानून का अंदर में कुछ तो आपका लैचेस लैक्यूना मिलेगा, उसको रेक्टिफाई करना है, क्योंकि लॉ इज समथिंग व्हिच चेंजेस विद द चेंजेस इन टाइम। लॉ इज समथिंग व्हिच चेंजेस विद द चेंजेस इन टाइम। आदमी भी बदलता है टाइम से, तो लॉ क्यों नहीं बदलेगा? पहले का जमाने ऑनलाइन नहीं था, आज तो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, तो इसके हिसाब से क्राइम भी ज्यादा हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉस भी है, इसलिए तो टाइम के साथ साथ आपको भी चेंज करना होगा। लॉ इज हैविंग अ नेचर व्हिच इज चेंजिंग। तो इफेक्टिव हुआ है 1909 में। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। सेक्शन 1 खत्म हुआ तो सेक्शन 2 में चला जाता हूं। इट्स डेफिनेशन क्लॉज, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2 is the definition clause. Section 2 is definition clause. Sometimes we call as a dictionary also, mini dictionary। सर क्यों सर? बात है क्या, आप जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ा है आप लोग, हो सकता तो लॉ स्टूडेंट हो तो पढ़ना तो पड़ेगा एक बार ना एक बार आपको। तो सब जगह आप देखोगे सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज, नहीं तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज। क्या बोला? डेफिनेशन क्लॉज नहीं तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया हुआ है। किसलिए जात पता है? क्योंकि even if some meaning is given particular टेक एग्जांपल, आप एग्जांपल देखो, गुड्स का मतलब क्या है? सर गुड्स का मतलब जो भलाई है, अच्छा है। फिर गुड्स का मतलब कुछ प्रोडक्ट्स भी है। ये जो मेरा लैपटॉप है ये गुड है ना, तो गुड्स का मतलब लैपटॉप भी है, गुड्स का मतलब भलाई भी है। नाउ द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन इज दैट व्हाट मीनिंग शुड यू कंसीडर? इफ एनी पर्टिकुलर मीनिंग इज गिवन इन योर डिक्शनरी क्लॉज, then you have to constitute to that meaning। आपको उस मीनिंग का मतलब कंप्लायंस करना है, उस मीनिंग के साथ साथ आपको चलना है। आप कुछ भी मीनिंग नहीं दे सकते हो। देखो एक वर्ड का 5-4 मीनिंग हो सकता है, बट लॉ ने जो सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज में जो मीनिंग दिया है वही मीनिंग आपको लेना पड़ेगा। कभी कभी तो सेक्शन 2 तो इंडिया को डिफाइन कर देता है, कभी कभी देखोगे पब्लिक ऑफिसर को डिफाइन कर दिया। सर इंडिया को डिफाइन करने का कुछ मतलब है? नहीं, क्योंकि आप ऐसा हो सकता है इंडिया को लेके आप कुछ अलग मीनिंग सोच सकते हो, इसलिए वर्ड क्लियर कर दिया। लॉ इज वेरी क्लियर। तो सेक्शन 2 में जो पहला है, फर्स्ट डेफिनेशन इज कोड, वो बहुत सादा है। कोड इंक्लूड्स रूल्स, वेरी कॉमन थिंग। ये जो कोड है, आप जितना सीपीसी में जितना धीरे धीरे आगे जाओगे आपको ऑर्डर मिलेगा, और ऑर्डर के साथ साथ रूल्स मिलेगा, क्योंकि आप प्रोसीड्यूरल लॉ पढ़ रहे हो तो उसमें तो रूल्स चाहिए। कोर्ट तो रूल्स के हिसाब से ही काम करते हैं। नेक्स्ट कम्स डिक्री। दिस इज इंपॉर्टेंट। पहला वर्ड ही डिक्री है। डिक्री क्या है सर? डिक्री का मतलब है फॉर्मल एक्सप्रेशन। डिक्री का मतलब है फॉर्मल एक्सप्रेशन। What is formal expression? कोर्ट के सामने आप तो फॉर्मली पहन के जाते हो ना, तो कोर्ट भी आपके साथ काम क्या करेगा? फॉर्मली करेगा। तो जो भी प्रोसीडिंग्स चल रहा है वो तो फॉर्मली चल रहा है। पहला बात ये है। सेकंड, जब डिक्री का बात आता है, डिक्री इज एक्चुअली अ डिसीजन। जिस डिसीजन की वजह से इट इज कंक्लूसिवली, व्हाट आई हैव रिटन, कंक्लूसिवली determining the rights and liabilities of the parties। सर मतलब नहीं समझा। ए के साथ बी का केस चल रहा है 2005 से 2020 में केस खत्म हुआ, कोर्ट ने ए के फेवर में डिक्री दिया है। सो इसका मतलब क्या है? ए का फेवर में डिक्री गया, मतलब ए का फेवर में डिसीजन गया है। तो ए केस जीत रहा है। 2005 से केस शुरू हुआ था, चलते 2015 फाइनली डिस्पोज हुआ है।
तो डिस्पोज का मतलब क्या है, खत्म हो रहा है। तो खत्म होने से कोर्ट एक कंक्लूजन देता है ना, कंक्लूजन देना पड़ेगा। सो व्हेन द डिक्री is being given by the court, it means the court is conclusively, it is making a conclusion of the suit। और डिक्री कहां देना होता है, डिक्री उधर ही होता है जहां सूट फाइल होता है। अपील में आपको डिक्री नहीं मिलेगा, सूट में ही आपको डिक्री मिलेगा। सो व्हेन इट इज डिटरमाइनिंग द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज, पार्टीज कौन है, जो सूट में कंट्रोवर्सी जिसके अंदर में चल रहा है, कंट्रोवर्सी तो कंट्रोवर्सी जिसके अंदर में चल रहा है। सो व्हेन द पार्टीज आर लिटिगेटिंग ऑन अ पर्टिकुलर इशू एंड द कोर्ट इज प्रोनाउंसिंग, court is passing the decree, that means the court is conclusively determining that particular suit, now decree includes two things, decree का मतलब आपका दो है, एक है पहला प्रिलिमिनरी डिक्री और एक है आपका फाइनल डिक्री। Going to the next page for the purpose of defining preliminary and final decree. डिक्री कितना तरह होता है पहले तो देखो। डिक्री आपका पहला होता है प्रिलिमिनरी डिक्री, एक होता है आपका फाइनल डिक्री, एक होता है आपका पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, हाँ होता है ना, और एक होता है डीम डिक्री। ओके, सेक्शन 2 का डेफिनेशन है, सेक्शन 2 का डेफिनेशन है, सेक्शन 2 में ये डिफाइन कर रहा है ऑल द थिंग्स। डिक्री कैन बी प्रिलिमिनरी एंड फाइनल आल्सो, राइट। ओके, नाउ प्रिलिमिनरी का मतलब क्या है, व्हेन अ पर्टिकुलर सूट इज बीइंग ट्राइड बाय द कोर्ट एंड इज एडजुडिकेटेड, एंड इट्स एडजुडिकेटेड का मतलब क्या होता है, डिसाइड करना, एंड इट्स एडजुडिकेटेड इट मीन्स सूट तो कोर्ट ने एंटरटेन किया, सूट को पहले कोर्ट ट्राई किया, उसके बाद कोर्ट एक पोजीशन में आता है एडजुडिकेट करने के लिए। सो व्हेन एन एडजुडिकेशन डिसाइड्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ, सूट में जो इशू है, एक क्या दो क्या चार क्या सब इशू के ऊपर कोर्ट एडजुडिकेट कर रहा है, which are actually in controversy in the suit, but does not completely dispose of the suit, सूट खत्म नहीं हो जाता है। प्रिलिमिनरी मतलब है कुछ काम अभी बाकी है, कोर्ट डिक्री दे रहा है। जैसे मान लो, सपोज टेक एन एग्जांपल, कोर्ट ने ए बी सी डी का अंदर में जो सूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट, सब के बीच में एक पार्टीशन होना था, तो ए ने ये झमेला खत्म करने के लिए बी सी डी का केस में पार्टीशन किया, और कोर्ट ने सबको बोला सबको इस प्रॉपर्टी का इक्वल पोर्शन देना है। तो सबको कितना मिलेगा, 1/4 1/4 1/4 1/4। प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी को 4 में बांटेगा तो ऐसा 1/4 1/4 1/4 ऐसा आएगा। बात ये है, कोर्ट ने ये डिक्री दे दिया, सर ये तो डिक्री दे दिया, फाइन, बट अभी भी क्या पार्टीशन हो गया फिजिकली? नहीं हुआ सर, होना चाहिए। तो ये जो डिक्री दिया, कोर्ट ने बोल दिया कि सबको तो इक्वल एंटाइटलमेंट है, किसी को ज्यादा किसी को कम ऐसा नहीं मिलेगा। इक्वल एंटाइटलमेंट क्या बोला, एवरी पर्सन इज एंटाइटल फॉर इक्वल शेयर, दे आर कोपर्शनर। इसका मतलब है, कोपर्शन का मतलब है को शेयरर। तो कोर्ट ने बोला सबका ही प्रॉपर्टी है, मान लो ये प्रॉपर्टी उन लोग का पिताजी का था, उस टाइम अनडिवाइडेड था, अभी पार्टीशन होकर डिवाइड हो रहा है, तो ये इक्वल शेयर है। बट ये इक्वल शेयर को
पूरा बांटने से, फिजिकली बांटने के लिए कुछ काम और भी बाकी है, तो वो काम पूरा का पूरा होगा तब फाइनल डिक्री आप रियलाइज कर पाओगे। सर क्या होगा, इस प्रॉपर्टी को पूरा ऐसा बंटवारा करने के लिए, मान लो प्रॉपर्टी अभी भी ये है, ऐसा ही है, तो इसको आपको 4 भाग करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वेयर अपॉइंट करना पड़ेगा, कि कमिश्नर अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो बाद में जाके कुछ फिर से डिस्प्यूट होता है, ये बोल रहे नहीं मेरा को कम कर दिया, वो बोलेगा मेरा को और भी थोड़ा ज्यादा चाहिए, ये ना होगा, इसलिए कमिश्नर सर्वेयर को अपॉइंट करके प्रॉपर मेजरमेंट हो जाएगा, तो दूध का दूध पानी का पानी साफ साफ हो जाएगा। सो इन दिस केस A will file an application for appointment of a commissioner and also for the appointment of a surveyor to make the partition physically so that the decree can be finally realized। जब ये सर्वेयर कमिश्नर जाके माप के एकदम प्रॉपर पार्टीशन एरिया सबको, मान लो ये प्रॉपर जमीन कितना है, टोटल 200 स्क्वायर फीट पकड़ लो ना, 200 स्क्वायर फीट, तो सबको कितना मिलेगा सर, 50 स्क्वायर फीट, 50 स्क्वायर फीट। सर आजकल का जमाना 50 स्क्वायर फीट नहीं होता, अरे ठीक है 1000 स्क्वायर फीट कर लो, 2000 स्क्वायर फीट कर लो, अरे 5000 स्क्वायर फीट कर लो ना, इसके लिए तो आपका मामला है, मैं एक छोटा मेजरमेंट करके आपको क्लियर कर रहा हूं। तो ये जब 50 करके स्क्वायर फीट किया है, कैसे हो रहा है सर, इसके लिए अलग से प्लानिंग किया है, स्केच किया है, किसका कितना मिलेगा नाप किया है, तो तब कंक्लूजन में आता है। ये जो सर्वेयर कोर्ट को रिपोर्ट देगा, कोर्ट इसके ऊपर क्या करेगा, फाइनल डिक्री दे देगा, प्लीज कॉल प्रीलिमिनरी एंड फाइनल डिक्री। फाइन, सो पहला पॉइंट क्लियर, फाइनल डिक्री पॉइंट क्लियर। प्रीलिमिनरी का मतलब क्या है, जो डिक्री को रियलाइज करने के लिए और भी कुछ करना बाकी है। सो वेयर एन एडजुडिकेशन, लिख लो, वेयर एन एडजुडिकेशन डिसाइड्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज, where an adjudication decides the rights of the parties with regard to all or any of the matter, with regard to all or any of the matter in controversy in the suit, but does not completely dispose of the suit, that is called preliminary decree। अभी preliminary का एग्जांपल्स आपको मैं बता देता हूं, जैसे मैंने अभी दिया है सूट्स फॉर आपका, जैसे आपको मैंने पार्टीशन का बारे में बोला, सूट्स फॉर पार्टीशन एक होगा, सूट फॉर पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन, लिखो फर्स्ट, सूट फॉर पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन। आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ प्रीलिमिनरी डिक्री, जिस केस में प्रीलिमिनरी डिक्री होता है, जिस केस में, देखो केस में तो फाइनल डिक्री आपको मिलेगा ही, बट प्रीलिमिनरी डिक्री सब केस में नहीं चाहिए। It's not mandatory that every civil case should have a preliminary decree। कुछ ऐसे सूट में खाली फाइनल डिक्री है, हो भी सकता है, तो आई एम सेइंग अबाउट द नेचर। जैसे लिखो सूट फॉर, जैसे अभी डिस्कशन कर पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन, सूट फॉर पोजीशन एंड मीन प्रॉफिट, ओके। नेक्स्ट, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिख लो, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सूट रिलेटिंग टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ऑर्डर 34। ये प्रीलिमिनरी डिक्री के साथ आपका ऑर्डर 34 का बहुत कनेक्शन है, पहले थोड़ा देख लेना, ऑर्डर 34 ऑफ सीपीसी। दिस इज ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट सूट्स रिलेटिंग टू मॉर्गेजेस, मॉर्गेज प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के केस में प्रीलिमिनरी डिक्री कोर्ट पास करता है, तब फाइनल डिक्री होता है। जैसे कभी कभी बैंक से आप लोन लेते हो, लोन नहीं दिया आपने, तो वो प्रॉपर्टी मान लो सेल ऑक्शन हो सकता है, तो मॉर्गेज रिलेटेड सूट्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया है, तो इट डिपेंड्स। व्हाट इज अबाउट पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री, उसके आगे पहले डीम डिक्री देखो सेक्शन 2 में एक पॉइंट है, इट शैल इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, इट शैल इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, राइट। आपका जो डीम डिक्री है, दैट पॉइंट इज आल्सो मेंशन्ड इन सेक्शन 2। आप देखो पॉइंट पढ़ो, सी
Decree means the formal expression of an adjudication which, so far as regards the court expressing it, conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final. इतना तक खत्म हो गया. It shall deem to include. It shall deem to include. उधर ही अटक जाओ. It shall deem to include what? The rejection of plaint. It will deem to include rejection of plaint. Rejection of plaint. कौन सा सेक्शन में है सर? ऑर्डर 711. रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. सर प्लेंट रिजेक्ट किया, कभी भी ऐसा हो सकता है रिजेक्ट किया है. यू कैन सी इन माय नेक्स्ट सेशंस व्हेन आई विल डील विद रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. ऑर्डर 7 जब मैं स्ट्रिक्टली डील करूंगा तो 11 तो आएगा ऑटोमेटिक. तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का ग्राउंड्स भी, जब कभी प्लेंट रिजेक्ट होता है तो उसको भी हम लोग डीम डिक्री बोलते हैं. डीम डिक्री बोलते हैं. डिक्री इन रियलिटी नहीं है बट माना जाता है. नेक्स्ट Section 144 is talking about restitution of suits. इसको भी माना जाता है. Restitution of suits मतलब क्या है? मान लो A वर्सेस B कुछ केसेस हुआ है. B ने कुछ A से लोन लिया था, वापस नहीं किया. A ने फाइल किया सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी. पैसा नहीं दिया है, पैसा नहीं दिया है. और मान लो कोर्ट ने A को जानबूझ के हरा दिया केस. सर ऐसे कैसे होता है? मान लो हो गया, प्रॉपर एविडेंस नहीं लिया, ए ने केस आ गया. बट बात है केस ए जितना था, ए को ही जितना था केस को. ए ने अपील किया, अपील करके वो डिक्री रिवर्स हो गया. तो रिवर्स हो में क्या होता है? नॉट मॉडिफाइड, रिवर्स मतलब जहां मुझे होना था पहले में नहीं था. जहां मुझे होना था पहले में नहीं था, बट जब मैं एपीलेट कोर्ट में उस डिक्री का अगेंस्ट में अपील किया तब मुझे वापस उस जगह मुझे दे दिया. तो पहले मैं केस हार गया था, सो आई वाज जजमेंट डेटर. द डिक्री वाज नॉट इन माय फेवर, आई वाज जजमेंट डेटर. एंड सिंस व्हेन आई अपील्ड फ्रॉम द डिक्री, द अपीलेट कोर्ट अंडरस्टूड दैट द ट्रायल कोर्ट हैज मेड अ मिस्टेक इन पासिंग द डिक्री, तो वो डिक्री को रिवर्स कर सकता है. दैट इज डीम डिक्री. बट एक बात है क्या, डीम डिक्री में रेस जुडिकाटा ऑपरेट नहीं होता है. रेस जुडिकाटा बाद में आ जाएगा. दिस इज ऑल कनेक्टेड. रेस जुडिकाटा जब आई विल से यू तब आ जाएगा. रेस जुडिकाटा इट इज इन सेक्शन 11 आएगा. आई विल क्लियर. रेस जुडिकाटा ऑपरेट नहीं होता है. वी विल डिस्कस एंड वी हैव डन सेक्शन 144. आज के लिए इतना रहने दो. लेट अस we'll complete the next portion the next session. Yes, welcome to the session of Juridux again. We'll be in continuation of the preliminary portion which we have done till decree. Yes, let's have a recap of what is decree actually. Decree मैंने बोला था क्या? Decree is the decision of a civil court which is in formal expression conclusively determining the rights and liabilities of the parties. Rights and liabilities of the parties and all questions which are in controversy between all or any of the parties in the suit. तो कहने का मतलब क्या है? Decree helps in conclusion of a suit. Decree helps in disposition of a suit. सूट को डिस्पोज करने के लिए तो कोर्ट को डिक्री का एक हेल्प लेना ही पड़ेगा. नाउ डिक्री वाज फॉलोड बाय वेरियस टाइप्स. डिक्री इंक्लूड्स प्रिलिमिनरी, डिक्री इंक्लूड्स फाइनल, डिक्री इंक्लूड्स पार्टली प्रिलिमिनरी, डिक्री इंक्लूड्स पार्टली फाइनल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई ऑल्सो हैड अ डिस्कशन ऑफ रेलिवेंट डीम डिक्री. तो वो भी डीम डिक्री इंक्लूड्स दोनों टाइप मैंने बोला था. एक बोला था सेक्शन 144 which talks about restitution of suit and order 7 rule 11 which talks about rejection of plaint which is also called as a deemed decree. माना जाता है, डिक्री हिसाब से इसको माना जाता है. राइट नाउ decree shall not include two things, that is an appeal from which an appeal from an order lies. मैंने क्या बोला वर्ड? decree does not include these two things. एक पहले बोला
Number one, an order of dismissal, an order of dismissal for default, सर ये क्या है? ये देखो, जब एक सूट प्रेजेंट होता है कोर्ट के सामने, सो पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू अपीयर. सो व्हेन द प्लेंटिफ इज फाइलिंग द और प्रेजेंटिंग द प्लेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सिविल कोर्ट, it is mandatory the plaintiff should appear before the court. But if the plaintiff is representing its case on behalf of him or herself by giving a wakalatnama to the advocate can also present the case on behalf of the plaintiff. But if the court requires the attendance of the parties, the court can do that by summoning that particular party. अभी मान लो प्लेंटिफ ने प्लेन फाइल किया, डिफेंडेंट समन रिसीव किया, समन रिसीव करने के बाद डिफेंडेंट नहीं आ रहा है. नहीं तो ऐसा भी हो सकता है प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों ही केस में कोर्ट में शामिल नहीं हो रहा है ऑन द डेट ऑफ हियरिंग. इफ द प्लेंटिफ आफ्टर प्रेजेंटिंग द सूट बिफोर द सिविल कोर्ट डज नॉट अपीयर ऑन द नेक्स्ट डेट और ऑन सम सब्सिक्वेंट डेट्स, और व्हेन द कोर्ट रिक्वायर्स द अटेंडेंस ऑफ द पार्टीज, but despite of receiving the summon, the parties are not appearing, that means it will be pretending that the parties are not interested in continuing the suit before that court. क्या हो सकता है सर इसका एक ही अंजाम हो सकता है, suit can be dismissed for default. So default on behalf of the parties, तो प्लेंटिफ का भी डिफॉल्ट हो सकता है, डिफेंडेंट का डिफॉल्ट से एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगा, बट प्लेंटिफ का डिफॉल्ट से सूट डिसमिस होता है. प्लेंटिफ का डिफॉल्ट से सूट डिसमिस होता है बिकॉज even if the defendant appears before the court, defendant will either deny or either admit the guilt, but admit तो नहीं करता है, रियलिटी में तो admit कभी नहीं करेगा. तो बात यही हो जाता है, सूट को डिसमिस हो जाता है. तो सूट का डिसमिसल जो ऑर्डर है वो एक ऑर्डर माना जाता है, उसको ऑर्डर माना जाता है, उसको डिक्री नहीं माना जाता है. तो डिक्री स्पेसिफिकली सेड दैट. नेक्स्ट, appeal lies as an appeal from order. See, if you see order 43, there are orders from which appeal lies. Order 43 is a summarize of all the orders, not all the orders, all the relevant orders from which an appeal lies. Order 43 is a summary of some relevant orders from which an appeal lies. देखो, डिक्री से भी अपील हो सकता है, ऑर्डर से भी अपील हो सकता है, ये तो पता है आपको. बट द थिंग इज दैट डिक्री से आप अपील जब करते हो, इट इज टोटली यू आर चैलेंजिंग द एंटायर consideration, entire judgment of the suit. But order is a part and parcel of a particular suit. आपको एक सूट में भी ऑर्डर मिल सकता है, डिक्री भी मिल सकता है, बट ऑर्डर आपको कुछ एप्लीकेशन नहीं तो पिटिशन फाइल करने भी मिल सकता है. फर्क ये रहता है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्री, ये पहले समझो, डिक्री एंड ऑर्डर. देखो, डिक्री का बात जो है, डिक्री और ऑर्डर के बीच में जो फर्क मेनली है, दैट इज डिक्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सूट और बाय फाइलिंग सूट. डिक्री आपको तभी मिलेगा जब आप सूट फाइल करोगे, बट ऑर्डर कैन बी ऑब्टेन्ड both from filing suit also or presentation of any application, petition or other proceedings. So the thing is that order is considered to be a daily to daily activity of the courts. एक सूट में आपका न्यूमरस ऑर्डर हो सकता है, बट एक सूट में
आपको डिक्री तो एक ही मिलता है, बट जो जो केस में मान लो प्रिलिमिनरी डिक्री आता है तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिक्रीज। तो माय टॉपिक वाज अबाउट दिस अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर। तो जिस ऑर्डर से अब अपील लाई होता है उसको डिक्री माना नहीं जाता है, बिकॉज डिक्री से अपील होता है सेक्शन 96 में, और ऑर्डर 43 और सेक्शन 184 रेलिवेंट सेक्शन देख लो, सेक्शन 104 पर लो से 108 पढ़ो और ऑर्डर 43 पढ़ो, उसमें लिखा है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, दैट ऑर्डर्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी अ डिक्री। दिस वाज ऑल अबाउट द डिक्री। नाउ कमिंग टू द डिस्कशन ऑफ section 2 bracket 3, section 2 bracket 3, what is all about section 2 bracket 3? decree holder. Who is the decree holder? जिसके फेवर में डिक्री पास हुआ है। सो सिविल कोड when, थोड़ा ये गलती है, चलो थोड़ा दूसरा लिखता हूं, चलो डिक्री होल्डर अ पर्सन in whose favor the decree is passed, in whose favor the decree is passed। तो इसका एंटोनिम क्या है, उल्टा क्या है? जजमेंट डेटर। that is covered in section 2 bracket 9, जजमेंट डेटर। जब किसी का अगेंस्ट में जजमेंट डिक्री होता है, a person in whose against judgment is passed, उसको कहलाता है जजमेंट डेटर। तो सेक्शन 2 ब्रैकेट 9 का एंटोनिम है सेक्शन 2 ब्रैकेट 3, और सेक्शन 2 ब्रैकेट 3 का एंटोनिम है सेक्शन 2। मैंने व्हाट क्या यूज किया? एंटोनिम। उल्टा होता है, एंटोनिम का मतलब है क्या? ऑपोजिट। तो डिक्री होल्डर का ऑपोजिट होता है जजमेंट डेटर। सर जिसका फेवर में ऑर्डर होता है उसको क्या ऑर्डर होल्डर? नो, ये बोला नहीं, ऑर्डर होल्डर नहीं होता है। देखो डिक्री होल्डर में डेफिनेशन पढ़ो, सेक्शन 2(3) में देखो, डिक्री होल्डर मींस एनी पर्सन in whose favor a decree has been passed. Go to the Bear Act and see section 2 bracket 3. It is said that decree holder means any person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution, तो जिसका फेवर में ऑर्डर पास करता है उसको भी आप डिक्री होल्डर बोल सकते हो। यस, डिक्री होल्डर इंक्लूड्स any person in whose favor an order is passed capable of executing। बात समझ में आया? तो आप ऑर्डर होल्डर नहीं बोल सकते हो। फाइन, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 2 ब्रैकेट 3, सेक्शन 2 ब्रैकेट 9। नाउ कमिंग टू सेक्शन 2 ब्रैकेट 4। अभी बोलो डिक्री होल्डर कहां जाएगा? डिक्री होल्डर जाएगा डिस्ट्रिक्ट में जाएगा ना। कहां फाइल करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। तो व्हाट डज डिस्ट्रिक्ट मींस? लेट अस सी व्हाट डज डिस्ट्रिक्ट मींस। देखो डिस्ट्रिक्ट का मतलब इधर है सिविल प्रोसीजर कोड बोल रहा है, इट मींस प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अंडर में भी नीचे का सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहता है, जैसे लर्नेड सिविल जज जूनियर डिवीजन, लर्नेड सिविल जज सीनियर डिवीजन। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अंदर होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सबऑर्डिनेट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सबऑर्डिनेशन का अंदर ये सब कोर्ट आता है। सो दैट कैन बी सेड एज अदर कोर्ट्स आल्सो। District court exercises appellate jurisdiction and also well as ordinary jurisdiction, original jurisdiction and divisional jurisdiction। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अपील भी कर सकते हो, जो ट्रायल कोर्ट्स में नहीं होता है। तो फर्क क्या रहता है? प्रिंसिपल सिविल कोर्ट इज एक्चुअली द कोर्ट which we say as district courts, and it also includes original civil jurisdiction
and it also includes original civil jurisdiction of high court. देखो क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट का एम्बिट देखो सर, डिस्ट्रिक्ट माना जाता है क्या है, सबऑर्डिनेट के ऊपर। आप कोर्ट का हायरार्की देखो, सपोज टेक एन एग्जांपल, सबसे नीचे वाला कोर्ट होता है स्मॉल कॉजेस कोर्ट, स्मॉल कॉजेस कोर्ट। बट कुछ कुछ जगह जब जहां स्मॉल कॉजेस कोर्ट नहीं है, उधर में सबसे नीचे वाला कोर्ट होता है लर्नेड सिविल जज जूनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन। इसके ऊपर लर्नेड सिविल जज सीनियर डिवीजन, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो इसमें भी देखो सीनियर डिवीजन होगा, सीनियर डिवीजन जज, और इसके ऊपर होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सबऑर्डिनेशन ये दोनों कोर्ट्स है, दिस आर अदर कोर्ट्स, दीज कोर्ट्स आर एक्चुअली ओरिजिनल jurisdiction, original jurisdiction. This court actually exercises original jurisdiction court. This court actually exercises original jurisdiction courts. But district court exercises both original jurisdiction plus appellate jurisdiction plus appellate jurisdiction. एक मिनट, let me see this. Yes, appellate jurisdiction plus divisional jurisdiction also. So district court exercises original jurisdiction plus appellate jurisdiction plus divisional jurisdiction. ये कोर्ट भी सेम है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आपका, नेक्स्ट डिविजनल जुरिस्डिक्शन, नेक्स्ट एपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो ये तीनों कोर्ट का होता है। सो द थिंग इज दैट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल द एपीलेट जुरिस्डिक्शन इज बीइंग एक्सरसाइज्ड, but in case of the trial courts, trial courts only exercises original jurisdiction, जहां मामला चलता है, जहां ट्रायल होता है, right? But if any particular case is being tried before the high court, can anyone challenge that high court has no power to try that matter? No sir, because high court का भी original jurisdiction बनता है। वो सबसे ऊंचा वाला कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है। तुम हाई कोर्ट तक सोचो। Those who are listening to this lecture try to understand what I am saying. High court also exercises original jurisdiction, but in reality क्या होता है, एक केस जब शुरू होता है फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड, सबसे नीचे वाला कोर्ट से शुरू होता है, तब वो मैटर जब चैलेंज होता है तो अपील में जाता है, तो अपीलेट डिवीजन में आता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट में जाता है तो अपीलेट डिवीजन में आता है। द थिंग इज दैट इफ द High Court thinks that a particular matter was not tried perfectly, the High Court can itself take up the matter and try no one can question to that, because High Court has that power. But reality says, जो actual procedure होता है, trial court exercise the original jurisdiction, district court exercise original jurisdiction and also appellate jurisdiction. तो ट्रायल कोर्ट से कभी डिक्री मिला तो उसको चैलेंज होगा तो you can go before the district court. So district here means principal civil court and original civil court, original civil jurisdiction of high court. ठीक है, ये आपको कहां दिया है, सेक्शन 120 CPC में दिया है। It is talking about original jurisdiction exercised by the high court. दिमाग में रखना, original jurisdiction मतलब क्या है, when you are filing the case for the first time against the defendant, the case has to be tried, the case has to be tried. So उसको ट्रायल करना है, पूरा का पूरा मैटर कोर्ट देखेगा। There will be filing of plaint, there will be filing of written statement, then there will be chief examination, cross examination, arguments, फलाना जो होता है, in order to try the dispute for the first time. So the court which exercises original jurisdiction, that is the first trial court. तो ये नीचे वाला कोर्ट जो है ना, स्मॉल कॉजेस कोर्ट, उसके ऊपर आप सीनियर डिवीजन वाले देखो, नहीं तो लर्नेड सिविल जज जूनियर डिवीजन, these are the courts which exercises original jurisdiction and not appellate jurisdiction. Appellate आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू होता है, ये दिमाग में रखना। बट सेक्शन 2(4) में ये बोल रहे हैं क्या, डिस्ट्रिक्ट मीन्स द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। सो डिस्ट्रिक्ट देखो, लैंग्वेज, डिस्ट्रिक्ट मीन्स द लोकल लिमिट्स, डिस्ट्रिक्ट मीन्स द लोकल लिमिट्स of the principal civil court of original jurisdiction and includes the local limits
ऑफ द ऑर्डिनरी सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट को पहले सेक्शन 2 ब्रैकेट 4 में तो बोल तो दिया, बट उसका क्लैरिटी और भी है, सेक्शन 120 सीपीसी में है, सेक्शन 120 पढ़ लेना। और सीआरपीसी में भी, सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। कौन सा सेक्शन में दिया है? सेक्शन 474, ये देख लेना। ओके, नाउ कमिंग टू फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट कौन सा सेक्शन? सर सेक्शन 2 ब्रैकेट 5। फॉरेन कोर्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ब्रैकेट 5। फॉरेन कोर्ट नाम सुन के लग रहा है क्या फॉरेन में ही है, राइट? बट द वर्ड फॉरेन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन सीपीसी, बट द फॉरेन वर्ड हैज बीन डिफाइंड इन लिमिटेशन एक्ट। फॉरेन वर्ड, फॉरेन हैज बीन डिफाइंड अंडर लिमिटेशन एक्ट 1963। ओके, सो 1963 और उसके साथ आपको सेक्शन 13, 14 सीपीसी का पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज यू वोंट अंडरस्टैंड फॉरेन कोर्ट। ऑब्वियसली द कोर्ट विच इज आउटसाइड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया, सो मीन्स द कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट उस कोर्ट के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए तो इसको फॉरेन कोर्ट बोला। नेक्स्ट कमिंग टू फॉरेन जजमेंट, सेक्शन 2 ब्रैकेट 6, इट्स टॉकिंग अबाउट फॉरेन जजमेंट। A judgment which is passed by a foreign court, right? So judgment of a foreign court. Now the question, why you are studying foreign judgment? देखो, फॉरेन जजमेंट जब पढ़ोगे तो आपको सेक्शन 13 भी उसके साथ पढ़ना पड़ेगा सीपीसी का। दैट इज, मान लो सपोज टेक एन एग्जांपल, ए हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट बी इन ऑस्ट्रेलिया इन रिगार्डिंग अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, सूट फॉर पेमेंट ऑफ मनी, and the Australian court has given a judgment that B should pay the amount to A within this time. A again, in order to harass B, has filed the same type of suit in India also, demanding the same amount of money. Now tell me whether A is permitted to do so? No, A को permit नहीं होगा, because पहले का सूट जो जजमेंट हो गया उसको डिक्री माना जाएगा, एंड दैट शैल हैव अ कंक्लूसिव, दैट विल बी अ कंक्लूसिव एविडेंस आल्सो, यू कैन से। क्या अभी मान लो बी को फंसाया ए ने फिर से इंडिया में, तो इंडियन कोर्ट में बी पहले प्रोडक्शन, बी विल फर्स्ट रेज एन ऑब्जेक्शन दैट a decree was passed, a judgment was passed by an Australian court in regarding the same matter, the subsequent matter cannot be tried. तो ये क्या होता है? ये होता है रेस जुडिकाटा, ये होता है रेस जुडिकाटा, because when a foreign court which has jurisdiction to try a suit or a matter and ultimately passes a judgment that will have a same effect as like an Indian court has passed. तो फॉरेन जजमेंट, मान लो कोई फॉरेन कोर्ट दिया है और वो जजमेंट इंडिया में इफेक्टिव होगा क्या नहीं, whether it shall have a conclusive proof or not, whether it will be effective or not. In that case, in that particular case, that judgment has to be testified, that judgment has to be meet some conditions and requirements. So requirement कहाँ दिया है? section 13. When we go to section 13, we will know what are the conditions, because until and unless if a court which is not competent to try a suit, and if a decree is passed, whether that decree or judgment will be effective in some other courts of some other country or not. एक कोर्ट जो मैटर को ट्राई किया, डिक्री भी पास किया, उसका इफेक्टिवनेस है क्या नहीं, उस डिक्री का कुछ महत्वपूर्ण इफेक्टिवनेस है क्या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस दिया है, तो वो सेक्शन 13 में है। तो सेक्शन 13 का कंडीशंस, मान लो
that foreign judgment is however meeting all those requirements, that foreign judgment is satisfying all the requirements which has been laid down under section 13 of CPC, then that foreign judgment can be said as a conclusive proof, conclusive evidence also. Next, coming to section 2 bracket 7, government pleader. Government pleader, what is a government pleader? Appointed by the state government, appointed by the state government, right? What किया देखो, includes any officer appointed by the state government, okay, for the purpose of what? For the purpose of appearing on behalf of the state. तो गवर्नमेंट प्लीडर कौन होता है? सरकारी वकील होता है जो सरकार का तरफ खड़ा होता है कोर्ट के सामने. सो गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस expressly imposed by the court on the government pleader, and also any pleader acting under the directions of the government pleader. तो गवर्नमेंट प्लीडर के नीचे भी पैनल प्लीडर रहता है. पैनल गवर्नमेंट प्लीडर के नीचे, मान लो सरकार ने एक गवर्नमेंट प्लीडर को अपॉइंट किया, उसका मतलब नहीं वो सब सारा केस गवर्नमेंट का सब अकेला देखेगा. इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग, देयर आर नंबर ऑफ केसेस आर पेंडिंग. तो पैनल होता है, तो उस पैनल में कितना गवर्नमेंट प्लीडर से उसका अंडर में कितना है, दे कैन ऑल्सो अपीयर, they are also all appearing for the state. Similarly in CRPC also, क्रिमिनल में भी गवर्नमेंट प्लीडर होता है, बट उसका नाम बदल जाता है क्या? पब्लिक प्रोसिक्यूटर. पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ओके. सेक्शन 2U में डिफाइन किया है. सेक्शन 2U डेफिनेशन क्लॉज में उसका डेफिनेशन दिया है, व्हाट इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर. Section 7A, section 2 bracket 7A, this is talking about what? This is talking about the definition of high court. बहुत मामूली डेफिनेशन है. हाई कोर्ट एज पर CPC इसका डेफिनेशन किया है. हाई कोर्ट इन रिलेशन टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मींस द हाई कोर्ट इन कैलकाटा. तो कुछ भी मान लो केसेस जो अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है बट हाई कोर्ट तो नहीं है. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज एक्चुअल एन आइलैंड एंड इट्स अ यूनियन टेरिटरी. वी थिंक अंडमान एंड निकोबार इट्स अ यूनियन टेरिटरी. जैसे लक्षद्वीप, दामन एंड दीव, तो अंडमान भी एक यूनियन टेरिटरी होता है. तो उसका हाई कोर्ट कौन है? उसका हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या? उसको नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा जरूर. कौन सा कोर्ट है? कैलकाटा हाई कोर्ट है. सो हम लोग का जो कैलकाटा हाई कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन बहुत बड़ा है. इट एक्सटेंड्स टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो हाई कोर्ट हियर इन रिलेशन, हाई कोर्ट इन रिलेशन टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता वी कैन से, और कैलकाटा हाई कोर्ट यू कैन से. सो हाई कोर्ट इन कैलकाटा, right? Now coming to section 27B. हाँ देखो, अभी ये हाई कोर्ट का डेफिनेशंस आपको जगह जगह मिलेगा. एक बार ये भी बोल देता हूं, हाई कोर्ट का डेफिनेशंस आपको मिलेगा CRPC में सेक्शन 2 ब्रैकेट 2 में. आप लोग देख लेना, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हिस्से में भी हाई कोर्ट का डेफिनेशन मिलेगा. सेक्शन 366 ब्रैकेट 14 में आपको हाई कोर्ट का डेफिनेशंस मिलेगा. तो depends upon the act you are studying, depends upon the code you are studying, you will get the definition of high court in different bare acts, in different codes also. जैसे CRPC में मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा आपको, उसका डेफिनेशन आप लोग थोड़ा देख लेना. हो सकता है कुछ वेरिएशन से, बट CPC का हिसाब से हाई कोर्ट in relation to Andaman and Nicobar Islands is the High Court in Calcutta. Okay. Next, 7B, 2 bracket 7B is talking about India. इसका भी definitions बहुत जगह दिया है. आप इंडिया का definitions आप IPC में भी देखो, section 18 में दिया है. आप CRPC में देखो, section
टू ब्रैकेट एफ में दिया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में भी डेफिनेशन है सेक्शन 3 में, ये भी देख लेना। These are definitions given. Section 2 bracket 8. Section 2 bracket 8 is talking about judge. भाई जज क्या होता है आपको पता है ना? आप जुडिशियल एग्जामिनेशन क्रैक करो अभी जज बनोगे। फॉर दैट you have to take a training for that purpose. ये तो आप CPC आप पढ़ रहे हो as being a law student, but when you are sitting for the judicial examination, the preparation is something different. It's quite different as compared to studying law. So judge here actually is the presiding officer. Presiding officer, अधिकारी, presiding officer. CRPC का इसका डेफिनेशन कहाँ दिया है? CRPC में आपको देख लेना, सेक्शन 9 ब्रैकेट 2 में दिया है, फिर से 11 ब्रैकेट 2 में बोला है, 16 ब्रैकेट 2 में बोला है। देखो आप CRPC में पढ़ोगे, उसमें देयर आर एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ जजेस। एक तो सेशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है, वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मान लो जो सिविल केस देख रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट जज सिविल केस देख रहा है, जब वो क्रिमिनल केस देखता है तो वो सेशन जज बनता है। आदमी एक है, बंदा एक है, बट सील उसका 2 है। मैंने क्या बोला? बंदा एक है, सील उसका 2 है। वही जज जब सेशंस कोर्ट में चला जाता है तो he becomes a person who will entertain the criminal appeals. वैसे आप उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाओगे तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मिलेगा, CGM कोर्ट, उसके नीचे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास मिलेगा। तो दे आर ऑल जजेस, राइट? Section 2 bracket 9 is talking about judgment. ये आपको देखना, what is judgment? It is actually a statement. It is actually a statement given by a judge. Given by a judge. Given by a judge. और आप बोल सकते हो grounds of decree or order. Grounds of decree or order. देखो एक ऑर्डर जब देता है वो भी डिसीजन है, बट एक डिसीजन देने के लिए तो कुछ स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना। What is the reason behind passing the decree? What is the reason behind passing the order? The statement shall conclude that. So grounds of decree, grounds of order is actually the judgment. Next coming to judgment letter, ये तो हो गया। Section 2 bracket 9 का तो कहानी मैंने बोल दिया पहले से। Yes, very important thing, legal representative. Section 2 bracket 11 is talking about legal representative. Have you mailed that mailed? Okay. Section 2 bracket 11 corporate crime. Yes, coming back to the discussion, I was taking the reference of legal representative under section 2 subsection 11. So section 2, write down section 2 in bracket 11, it's talking about legal representative. Legal representative, right? Number 1. Now legal representative actually the definition which has been given under CPC by virtue of section 2 bracket 11, that is legal representative, has been broken in 4 parts. I am breaking, chalo, let's break the sections into 4 parts. One is according to law. Next, a state of deceased person. Next, interfere. Okay, interfere. And the last but not the least, sue or can be sued. Now, what is a legal representative? Take an example. A has filed a suit against B. So A here is the plaintiff, B is the defendant. During the pendency of the proceeding, during the stage of evidence, all on a sudden day, A dies. All on a sudden day, A dies. Now, by reason of such death, the suit is abated? No, sir. The suit is not abated. Here, abated
I am talking about abated, not abatement. So ए का मरने से सूट तो खत्म नहीं होगा, सूट कंटिन्यू होगा। कौन करेगा सर? लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। तो बात ये है, द वन हु इज रिप्रेजेंटिंग the deceased person. So we can say that legal representative is legal representative of deceased person. Now this deceased person should be according to the law. जैसे बाप, उसके नीचे बेटे, उसके नीचे उसका बेटे। तो बात है क्या? दिस इज अ फैमिली ट्री। देयर इज अ फैमिली ट्री। ये ट्री जो मैंने बोला, ये देखने में तो ऐसा है, बट फैमिली ट्री जब बोलते हो, सपोज टेक एन एग्जांपल, एक्स था दादाजी का 2 बेटे था, वाई एंड जेड। वाई के 4 बेटे हैं, ए बी सी डी। जे का कुछ नहीं है, मान लो, हाँ ठीक है चलो ए है, के बोल के एक उसका लड़की है। नाउ हाउ कैन यू से हु इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हुज? So A is a legal representative of Y. Y is the legal representative of X. Now in the event of death of Y, who is dying intestate, मतलब अपना घर पे ही मतलब अपना घर पे जिसका जो मृत्यु हो रहा है, जिसका मृत्यु हो रहा है, जो डिसीज पर्सन है, that person is dying intestate, उसका एस्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? अभी लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। So legal representative is always according to law who is representing the estate of a deceased person and who interferes in the property of the deceased person and who can sue on behalf of the deceased person or can be sued on behalf of the deceased person. Okay, done. Next coming, देखो ये पढ़ने में आपको 2 मिनट लगेगा, बट इसको एलाबोरेट करके पढ़ना बहुत मजा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट्स। एक कॉमा का भी मीनिंग है सीपीसी में, ध्यान रखना। Next coming to section 2 bracket 12, it's all about main profits. What is main profits? Okay, main profits के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? कंडीशन इज दैट wrongful possession। मैंने व्हाट क्या लिखा? wrongful possession। अभी wrongful possession का मतलब क्या है? जिसका एक्चुअल पोजीशन होना था वो एक्चुअली में नहीं है, बट कोई दूसरा व्यक्ति है। सपोज टेक एन एग्जांपल, ये एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसका एक्चुअल ओनर कौन है? एक्चुअल ओनर इज मिस्टर एक्स इज द एक्चुअल ओनर, बट मिस्टर वाई इस प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली पॉसेस कर लिया, कब्जा कर लिया, और इस प्रॉपर्टी में मान लो कुछ बेनिफिट्स हो रहा है। बेनिफिट्स का मतलब क्या है? मान लो इधर में कुछ इस प्रॉपर्टी का ऊपर कुछ फसल होता है, नहीं तो इस प्रॉपर्टी में कुछ रेंट एक्रू होता है, तो वाई इज टेकिंग दोस रेंट्स। वाई बीइंग इन द रॉन्गफुल पोजीशन इज टेकिंग द बेनिफिट्स टुगेदर विथ इंटरेस्ट। व्हाट आई सेड, बेनिफिट्स टुगेदर विथ इंटरेस्ट। अभी मान लो मिस्टर वाई ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट किया है। पहले जैसे था मिस्टर एक्स का वजह से हुआ था, अभी उस प्रॉपर्टी में बहुत डेवलपमेंट्स आए और डेवलपमेंट्स के वजह से बेनिफिट्स भी और इंक्रीज हो रहा है। सो व्हाट एवर इंप्रूवमेंट्स हैज बीन मेड बाय वाई, दैट इज एक्सक्लूडेड। तो मतलब क्या है? कोई एक रॉन्गफुल पोजीशन में है, प्लस इन प्रॉपर्टी देयर इज सम बेनिफिट्स। जिस मतलब जो रॉन्गफुल पोजीशन में है, जो व्यक्ति रॉन्गफुल पोजीशन में है, कहां पोजीशन में? कोई प्रॉपर्टी के, तो प्रॉपर्टी होना चाहिए। सो इन प्रॉपर्टी देयर इज सम बेनिफिट्स, and interest included property, there is some benefits and interest included, but excludes any
improvement, any improvement made by person in wrongful possession. अभी थोड़ा कहानी का तरह समझो। X का प्रॉपर्टी था, Y ने कब्जा कर लिया। Y उस प्रॉपर्टी में wrongfully possessed है फ्रॉम द ईयर 2010, आज 2020 हो गया। सब बेनिफिट्स कौन ले रहा है? मिस्टर Y ले रहा है। मिस्टर X नाउ सूट फाइल किया, किसके अगेंस्ट में? Y के अगेंस्ट में। सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन, पहले तो पोजीशन मिलना है, एंड मेन प्रॉफिट्स। कुछ लोग उसको मेसने प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, दैट मैटर्स, हार्डली मैटर्स। मेन प्रॉफिट्स के लिए भी वो क्लेम करेगा। तो पहले पोजीशन मिलने दो, तो कोर्ट पहले एक्स को पोजीशन देगा, उसके बाद एक्स दोबारा मेन प्रॉफिट्स के लिए क्लेम करेगा। तो ये केस में आपका दो डिक्री आएगा, एक तो प्रीलिमिनरी डिक्री आएगा, पहले पोजीशन आएगा, प्लस मेन प्रॉफिट्स जब फाइनल रियलाइज हो तो फाइनल डिक्री आएगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट कमिंग टू सेक्शन 2 ब्रैकेट 14। सेक्शन 2 ब्रैकेट 14 वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डिफरेंस आता है। ओके, 2 ब्रैकेट 14 इज अबाउट ऑर्डर। 2 ब्रैकेट 13 आएगा, 13, आई एम सॉरी, 13। 2 ब्रैकेट 13 इट्स अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी। यस सर, मेन प्रॉफिट्स है तो मेन प्रॉफिट्स मूवेबल प्रॉपर्टी है। अभी मेन प्रॉफिट्स को लेके मैं चर्चा कर रहा था, वो मेन प्रॉफिट्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी होगा। ओके, मेन प्रॉफिट्स एक्चुअली मूवेबल ही होता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी की आपका डेफिनेशन आपको आईपीसी में भी दिया है, सेक्शन 22 में, पढ़ लेना। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स। ये ग्रोइंग क्रॉप्स को भी लेगा, ग्रोइंग क्रॉप्स। ये मैंने क्रॉप्स का थोड़ा ड्राइंग कर दिया, इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स। इसका डेफिनेशन आप बोलोगे तो आपको मिलेगा बहुत जगह में, बहुत बेयर एक्ट्स में मिलेगा। द प्रॉपर्टी विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, विच कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो हार्डली मैटर्स। नाउ कमिंग टू सेक्शन 2 ब्रैकेट 14, this is very important, order. What is order? As per the definition given, order means a decision, the formal expression of a decision of a court which is not a decree. तो order क्या है? It is a formal expression of a decision of the court which is not a decree. तो very straight का definition, order क्या होता है जो decree नहीं है? Order is a formal expression of a decision. Order is a decision of the court which is not a decree. So order means which is a decision of civil court but not decree. जैसे आप लोग सीआरपीसी में क्या है, समन केस क्या होता है? जो वारंट केस नहीं है, वैसे डेफिनेशन दिया है। अभी ऑर्डर एक्चुअली दो तरीका होता है सिविल में। ऑर्डर इज एक्चुअली दो तरीके, एक होता है जनरल ऑर्डर, एक होता है फाइनल ऑर्डर। सर फर्क क्या है? देखो, फाइनल ऑर्डर में जो राइट्स लाइबिलिटीज कुछ थोड़ा भी डिटरमाइन होगा। जनरल ऑर्डर का इसका मतलब है जो अभी भी मैटर एक्चुअली चलना है, मैटर अभी भी चलेगा, उसके आगे कुछ ऑर्डर दिया है। तो जनरल ऑर्डर में आपका दो तरीका होता है। नेक्स्ट, एक होता है आपका इंटरिम ऑर्डर, और एक होता है इंटरलोकेटरी ऑर्डर। अभी इंटरिम ऑर्डर क्या है और इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या है? देखो, इंटरिम ऑर्डर इज एक्चुअली पास्ड फॉर सर्वाइविंग द सूट। जैसे आप देखोगे इंटरिम मेंटेनेंस देता है, सेक्शन 125 में जाओगे, एक रेफरेंस ले लो मेरे से, सेक्शन 125 सीआरपीसी। आप देखो उसमें सीआरपीसी में क्या लिखा, देयर इज अ व्हाट कॉल इंटरिम मेंटेनेंस। कौन मांगता है? वाइफ मांगता है। किस लिए मांगता है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए, तो हस्बैंड से मांग रहा है कोर्ट से, क्या मुझे इंटरिम मेंटेनेंस दो, नहीं तो आगे मैं केस को कंटिन्यू नहीं कर सकता हूं। बात तो ये है, साफ साफ मैं बोल रहा हूं आपको। तो वो सर्वाइवल करने के लिए, सो इंटरिम सूट इज एक्चुअली पास्ट फॉर सर्वाइविंग द सूट, पास्ट फॉर सर्वाइविंग द सूट,
राइट। और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर एक्चुअली पास होता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पेरिसेबल आइटम्स। जैसे मान लो कोई एक प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हुआ है और उस प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड है और उस एग्रीकल्चर लैंड में मैंगो का कल्टीवेशन होता है, तो केस चल रहा है कम से कम 5-6 साल, बट कल्टीवेशन का जो प्रोडक्ट्स है जैसे आम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मैंगो होता है वो तो खराब हो जाएगा, सीजन चेंज होगा तो खराब हो जाएगा, इट विल गेट राइप आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, दैट विल ऑल गेट रॉटन, खराब हो जाएगा। तो उसको उस टाइम प्रिजर्वेशन करने के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेरिशिंग, कुछ तो ऑर्डर चाहिए, तो इंटरिम ऑर्डर, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स होता है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स होता है। इट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पेरिशेबल आइटम्स। ये ऑर्डर 39 रूल 6 to 10 को आपको पढ़ना पड़ेगा, यू विल गेट इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स। सो ऑर्डर और डिक्री का बीच में आपको फर्क समझ गया। ऑर्डर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सूट as well as from filing an application, whereas decree is obtained can from a suit. Okay, 2 bracket 15 वकील प्लीडर का बात बोला है, that's not an big deal. Coming to the definition of public officer, it's important. Section 2 bracket 17 talks about public officer. पब्लिक ऑफिसर सीआरपीसी, एससीपी, आईपीसी में देखोगे, आईपीसी में पब्लिक सर्वेंट बोला है, बात एक ही होता है, फर्क कुछ नहीं है, लैंग्वेज में थोड़ा फर्क है, बट बात होता है। देखो जो जज होता है सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में बैठ रहा है, दे आर पब्लिक ऑफिसर्स, सो इट इंक्लूड्स जजेस, persons who are engaged in all India services. सो कमीशन और गेजेटेड ऑफिसर, कमीशन ये आपका शॉर्ट नोट्स में आ सकता है क्वेश्चन में, कमीशन और गेजेटेड ऑफिसर्स, ये पब्लिक ऑफिसर्स का है, मतलब जो सरकारी काम करता है। यू कैन से ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट, बट सीपीसी का लैंग्वेज थोड़ा अलग है। सेक्शन 3 इज इंपॉर्टेंट, बाकी का सेक्शन उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। सेक्शन 3 में चले जाओ। सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है? इट इज सेइंग दैट सीपीसी में जो सबऑर्डिनेशन है, एक है पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पहले एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और एक है अदर कोर्ट्स, ठीक है। तो मैंने आपको बोला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसका कंट्रोल में है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, whereas other court is under the control of district court and also high court. So subordination of court में बात ये है क्या, कोर्ट का सबऑर्डिनेशंस देख रहा है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके सबऑर्डिनेट होता है? हाई कोर्ट इज सुप्रीम, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो सबऑर्डिनेशन आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट। वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी नीचे आपका लर्नेड सिविल जज, जूनियर डिवीजन, लर्नेड सिविल जज, सीनियर डिवीजन, उसके नीचे आप उधर जाओ स्मॉल कोर्ट कोर्ट भी मिलेगा, तो वो किसका सबऑर्डिनेशन है? सबऑर्डिनेशन ऑफ district courts. So it is clear in section 3, for the purpose of this code, the district court is subordinate to high court, and every civil court of a grade inferior to that of a district court and every court of small causes is subordinate to the high court and district court. Bas definition is clear. Okay, we'll be discussing with the suits in general portion, that is part 1, after the next session.